Hello guys, welcome back to our new video. As we discussed yesterday, what is business risk, what is audit risk, and what is ROMM with its example. So in today's video, we will take a complete lecture on what is business risk. Okay, so we start our video. Yes, as you already know, what is business risk? A risk that a company may fails to achieve its objective due to loss of sales, fallen in profit margin, and increase in cost. So we will discuss a complete question today. Hmm. So I have taken this question from Kaplan Exam Kit, Hammer Group. So I will read the question first. It is 1st July 2015. As I told you earlier, that the date is most of the cases is 1st July 2015. You are a manager in the audit department of Stanley Associate and a firm of a chartered certified accountant responsible for the audit of Hammer Group. You are responsible for the audit of Hammer Group, whose year end is 30th September 2015. I have already told you this that in most of the cases the year end is 30th September 2015. Okay, so the company is not a listed company, okay, and operate a number of hardware store. Company majorly uh, operating in number of hardware stores which supply trade customer and the publics. Okay, so I think there is no problem till now. So your firm audit all component of the group means your firm is responsible to audit all the component of the company or group including a foreign subsidiary. Okay, so following exhibits, we have given the following exhibits. So first one is partner email, which we have received from the audit engagement partner, and second one is group structure and activity, which include outline of the group structure and activity relevant to the audit planning. Third one contain the financial information about the company or the group. Fourth one is business development. We will read it later. And next one is additional services. Okay. So the information should be used to answer the question requirement. Means the exhibit which we have given, we have to use these exhibit to answer our to frame our question. Okay. So required response on the introduction on the email from the audit engagement partner. So we have to respond from the email which we have received from the audit engagement partner. So marks is split on the marks allocation is shown in exhibit 1 partner email 40 marks, and I have, as I told you earlier, that our question is of 50 marks, out of which 40 marks is technical and 10 marks is professional. Professional marks will be awarded based on the our communication, analysis and evaluation, professional skepticism and judgment, and commercial acumen. Okay, so now we read our exhibit 1. Okay, exhibit 1. To the audit manager from Paula Sanders, group engagement partner. So when we start our question, firstly, I have to make a briefing notes. Okay. So for briefing notes, I have to start with, as I told you earlier, that I have to prepare the briefing note like to, from, subject, date. So in our case, when we start our briefing note, we will start like that. To, from whom? To Paula Sanders, group engagement partner, from audit manager, subject Hammer Group, audit planning of Hammer Group, date 1st July 2015, and then we have to start our introduction. Okay, so introduction. So, hello, I meet with the group finance director yesterday, along with representative from the group audit committee. We discussed the group activity during the year and its plan to expand into further international market next year. They also provided me with some extract from the projected consolidated financial statement and a selection of key performance indicator. I have also provided you with some background information from the group to assist with the planning of the audit. Based on the analysis which I have done on the industry,
till now I don't have any information which is much important for me to understand. The main information is this: it is important for the overall materiality to be based on revenue. I have told you already na कि that uh, our materiality is based on revenue, asset, and profit before tax. And we have already given in the question how on which base I have to calculate the revenue. Sorry, materiality. So our materiality is based on the revenue. Okay, so as we all know that materiality revenue threshold is 0.5 to 1%. So, yes, you will need to determine and apply an appropriate materiality threshold, which is 0.5 to 1% in our briefing notes. Okay, so using the information below, I required to prepare the briefing note in which you have to evaluate the business risk, and business risk is of 10 marks. So, in this lecture, we will cover the business risk deeply. So, let's start our question. I have to use this materiality and all for evaluation and prioritization of risk of material statement. There is no use of materiality for business risk for now. Okay, then we will start our question. Exhibit 2. The group operates in a number of large hardware store. Group is operating in a large number of hardware stores. The stores supply building materials and equipment to the public and to builder. Means the store is supplying the materials and equipment to the public and to builders. Okay. The Hammer brand, which is internally generated and not recognized in the consolidated statement of financial position, is to the group success, is key to the group success. Okay, no problem. One of the group subsidiary, Renchco, a group has one subsidiary, Renchco, is a financial services company specializing in providing the saving account and loan to individual. Okay, uh, for now, the important information here is that the group has one subsidiary, Renchco, who is providing a financial services to their customer, and who is generally providing the saving account and loans to individual. Okay. So first one, Mallet Co is a wholly owned subsidiary and operate the Hammer store. First one subsidiary which we have read is Ranch Co, and the second one is Mallet Co. Mallet Co is the wholly owned subsidiary and operates the Hammer store. It generates the majority of the group income. Means the company, the Hammer Group, most of the income is depend upon Mallet Co. Okay. Mallet Co owns 50 retail store across the world. Okay. Mallet Co has been involved in a price war with another national hardware store during the year, offering significant discount and heavily marketing the Hammer brand in an attempt to increase market share. So हम क्या कर सकते हैं? हम 2 मिनट इसको सोच सकते हैं कि इसमें किस तरह का मुझे बिजनेस रिस्क दिख रहा है. Like I can see that Mallet Co, the company whole of majorly revenues depend upon the Mallet Co, as the Mallet Co own the 50 retail store. This is not any problem for us. But the main problem is that Malletco is involved in the price war. So you can think that what will be the result of price war? Maybe uh, प्राइस वॉर का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मे बी इसकी वजह से मुझे क्या हो सकता है, मेरा कस्टमर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर एक क्या प्राइस ऑफर कर सकता है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी वजह से एक मुझे बिजनेस रिस्क राइज होएगा कि मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी कम रेट में दे रहा है। उसके अलावा कंपनी अगर डिस्काउंट देती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का डिस्काउंट देने से क्या होएगा कि कंपनी को मार्जिन इतना कम होना स्टार्ट हो जाएगा कि वो अपने सेल प्राइस को भी कवर नहीं कर पाती, मीन्स कि जो उसकी कॉस्ट पड़ी है वो उसको भी कवर नहीं कर पा रही है। तो मीन्स हमने इसमें फर्स्ट हमने पैराग्राफ रीड किया एंड देन वी एनालाइज दैट देयर इज some businesses arise in this situation. So I have defined this from here. Competitive environment. The company is operating in a competitive environment, as we already discussed.
has been involved in the price war. The hardware store industry is highly competitive, as illustrated by the price war between the competitor and Mallet Co. and as indicated by the sale promotion offered by the group. Understood? Okay. Then there is a risk of losing customer. As I told you earlier, that there might be our customer might be shifted to the competitor. Might be they will get some discount there. So our customer can be shifted to our competitor. So there is a risk that of losing our customer if these strategies are not successful. Means the significant discount and heavy marketing, which were started by Hamper Group, might be not be attractive for the customer, and their customer might be shifted to their competitor. So there is a risk of losing customer if their strategy is not successful. Furthermore, aggressive pricing strategy will push pressure on the profit margin and cash inflow. As I told you that maybe they are giving the discount which are not able to cover their cost. So if this case happen, their aggressive price strategy will push pressure on their profit margin and their cash inflows. I hope this is clear to all. Second one, Ladderco is an overseas subsidiary situated in Finland. Okay, there is one more subsidiary, Ladderco. Ladderco is an overseas subsidiary situated in Finland. The group obtained a 65% shareholding in October 2014 for a cash consideration of 82 million. Till there is no problem. The share price was financed partly using a 32 million bank loan with the variable interest rate, which has been taken out in October 2014, and partly through the group existing cash reserves. The bank loan has covenant attached to it in relation to interest cover and gearing. So think about 2 minutes, just think. If I had taken a bank loan and the bank has attached some condition to it, and there may be a condition that I am not able to repay the loan. And if this condition exists and I am not able to repay their loan, maybe the bank will put some restriction on us, and we breach the covenant which was attached to the bank loan. So in that case, our reputation will get damaged, and our gearing ratio will also increase, which will further impact our cash flow. So in this way, I am अंडरस्टैंडिंग ना कि मैं अगर ये काम नहीं कर पाई तो इसकी वजह से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, मेरा बिजनेस किस तरह तरह से इफेक्ट हो सकता है। सो मैंने एक पॉइंट उठाया और मैंने देखा कि मैं बैंक से लोन ले रही हूँ और वो भी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे। तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं अगर एक ऐसा लोन ले रही हूँ जिसको मैं फुलफिल ना कर पाऊँ, तो इसकी वजह से मेरा गियरिंग तो इम्पैक्ट होएगा ही होएगा। साथ में मैं अगर लोन नहीं रीपे कर पाई तो इससे मेरे ऊपर रेपुटेशनल डैमेज भी होएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता रहेगा जैसे-जैसे मैं डेट नहीं कर पाऊँगी। तो इसकी वजह से कंसर्न हो जाता है कि अगर मेरी जो गियरिंग है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है और फर्दर मोर अगर मैं उसको इंटरेस्ट डेट को अगर मैं रीपे नहीं कर पा रही हूँ तो वो मेरी सिचुएशन को और बैडली इफेक्ट कर सकता है, मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि मेरा बिजनेस क्लोज डाउन भी हो सकता है। सो अब मैंने एक बिजनेस रिस्क डिटेक्ट किया, अब मैं उसको ऐसे ही डिफाइन करती हूँ जैसे मैंने बताया है, हम उसको वैसे ही देखेंगे। बैंक लोन, ठीक है, a significant bank loan representing 6.4% of the group total asset. I have taken 6 point. I will show you. The company total asset for the current year is 500 million. Okay. And the bank loan is 82 million. So it represents 6.4% of the total group asset. So has been taken out from the partly fund the acquisition of Ladder Co. Okay, we understand that the loan is representing 6.5% of the total asset, which was reason for the taken of this loan is for the fund for the acquisition of Ladder Co. Okay, this would have contributed to the significant increase in gearing ratio. As we all know, if we take loan from the bank, then
our ratio will impact automatically. Yes, so this will impact the gearing ratio of the company. High gearing ratio poses a financial risk to the company. Yes, of course, especially due to the variable interest rate attached to the loan. A variable interest rate attached to the loan. And think, if the interest rate rise, then the group may struggle to pay their interest payment also. This is a real concern, especially as the interest cover show a sharp decline during the year. So we have to calculate, means the examiner has not said that you have to calculate these, you have to calculate these, but for a better understanding, we can calculate interest cover and we can really show that yes, our interest cover ratio is already declining during the year, which represents that the companies fail to pay their interest on time. And their gearing ratio is also 68% during the year, which was already given to us. Like I will show you this one. 68% during the year, which was 35% in the previous year. So there is a big increase. So the bank could recall the loan if the covenant are breached. I have told you already ना कि बैंक अगर हम अपनी कोवेनेंट को ब्रीच कर देते हैं तो बैंक हमसे रिकॉल कर सकता है लोन को एंड द ग्रुप इज लाइकली टू रीपे द लोन in its if they recalled, if the bank recalled, there might be a condition that we are not able to pay that loan. So all of these I have understood that कि मेरा बिजनेस इस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है. आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा कि मैं अगर ये काम नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा बिजनेस इससे कैसे इफेक्ट हो सकता है. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अगर मेरे 50 एक मेरी सब्सिडरी जो है वो 50 स्टोर चला रही है और अगर मैं उसी पे मेरे वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आ जाए, उसी पे जो मेरा है रिस्क फैक्टर आ जाए कि हो सकता है कि अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ या फिर मैं कोई मार्केटिंग कर रही हूँ उसके बावजूद में प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो इस कारण क्या है, मेरा बिजनेस तो हाईली इम्पैक्ट हो गया ना, क्योंकि मेरी सेल सिग्निफिकेंटली उसके ऊपर ही डिपेंड कर रही थी और अगर वही बिजनेस अब काम नहीं कर रहा है तो इससे मेरा बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है. ठीक है. एंड सेकंड वन हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ सकता है हमारा अगर हम लोन लेंगे. अगर अब गियरिंग इम्पैक्ट हो सकती है हमारी, एज हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारा 35 आई थिंक 35% से 68% हो गया है ड्यूरिंग द ईयर. यस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम रीपे नहीं कर पाए तो इसकी वजह से फर्दर इफेक्ट आ सकता है हमारे ऊपर, जैसे कि रेपुटेशन डैमेज कोज हो सकता है. अब नेक्स्ट वन हम क्या पढ़ रहे हैं, द पर्पस ऑफ द एक्विजिशन वाज टू एक्सपेंड द ग्रुप ऑपरेशन इनटू द न्यू जियोग्राफिकल मार्केट. मेरा पर्पस क्या था एक एक्विजिशन करने का, कि मुझे न्यू जियोग्राफिकल मार्केट में एक्सपेंड करना है. ओके. This is the first overseas investment made by the Hammer Group. Okay, this is the first time overseas investment जो कंपनी जो हैमर ग्रुप के द्वारा की गई है. तो अब यहाँ से मेरे माइंड में क्या जाता है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हो सकता है कंपनी को नॉलेज ही ना हो कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मुझे पता ही ना हो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मुझे पता ही नहीं होगा वहाँ की गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो वहाँ पे तो हो. मतलब मेरे माइंड में मैंने मैंने नहीं रीड किया है, मतलब मेरे माइंड में एकदम हिट किया कि मैं अगर एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल सकता है. तो लैडर को ओन्स 50 हार्डवेयर स्टोर इन फारलैंड. 35% ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन लैडर को इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फारलैंड. अभी हमने ऊपर रीड किया था ना कि वी ऑब्टेन द 65% कंट्रोल, तो रिमेनिंग 35% कंट्रोल ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किया जा रहा है. Due to the regulatory requirement that at least a proportion of the company capital is government owned. Okay. The currency in Ireland is same as the country in which the group is based. Okay, जो currency है Ireland की वो same है जो group की खुद की country में है. ओके. सो अब मुझे इसको पढ़ने से क्या पता चला, जैसे कि मैंने बताया एक्विजिशन कर रहा हूँ मैं लेटर को का. सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये एक ओवरसी इन्वेस्टमेंट है. हो सकता है ग्रुप को क्या हो, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज हो कि वो फॉरेन सब्सिडरी को कैसे ऑपरेट करे, क्योंकि उसके लोकल रेगुलेशन अलग हो सकते हैं एज
there is already given. Your company was appointed as auditor of Ladderco in October 2014, and a several member of audit team have traveled to Ireland to become familiar with the company, its key management personnel, and its regulatory environment. Ireland does not mandate the use of IFRS accounting standards, and Ladderco individual financial statement are prepared using Ireland National Accounting Standards. So हमें यहाँ से पढ़ने से ही पता चल रहा है कि फारलैंड में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं वो डिफरेंट है, वो लोकल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ IFRS. सो फर्स्ट वन हमने पढ़ा कि अगर कोई ओवरसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हो सकता है उसको ग्रुप को लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टाइज हो फॉरेन सब्सिडियरी के बारे में, इन पर्टिकुलर अगर वो लोकल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, तो इससे तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ रहा है हमारा. सेकंड वन मैं क्या देख रही हूँ कि एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ हिस्सा जो है वो ग्रुप ने दिया है एंड कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है. तो अगर गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड ओन 35% ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड मे बी दैट द गवर्नमेंट attempt to use its shareholding and significant influence to interfere with the group plan for the company. Any such political interference could affect the return on investment and the group strategy of international expansion. This would be made worse if there is a political instability or economic problem in Farland. As मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि अगर ये तो एक इन्होंने मुझे क्वेश्चन में सिचुएशन दे दी कि ऑलरेडी गवर्नमेंट 35% शेयर होल्ड कर रही थी एंड अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर करती है तो इसके कारण मेरा क्या हो सकता है कि मेरे बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है मेरे बिजनेस में. तो और अगर वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इसका तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे बिजनेस पे. लेकिन अगर मुझे ये पार्ट कहा भी नहीं जाता है कि गवर्नमेंट 35% शेयर होल्ड कर रही है इसका. इसके अलावा भी अगर मैं सोचूं तो मैं अपने माइंड में सोच सकती हूँ कि हाँ, मे बी दैट 35% might be held by someone else, but the country which we are starting our operation, our business, there there may be a high level of political instability, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो सकते हैं वहाँ के, मे बी हमारे यहाँ पे डिमांड्स कस्टमर की कुछ हो रहा है बट फारलैंड में कस्टमर की डिमांड कुछ हो रहा है. तो इन सब फैक्टर की वजह से मेरा बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है मुझे वो रिजल्ट ना मिले, मेरी इन्वेस्टमेंट का पैसा भी मैं रिकवर ना कर पाऊँ. तो ये यही कह रहा है, द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बाय द ग्रुप एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ द बिजनेस फेलिंग एंड द ग्रुप क्लोजिंग सम आउट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. जिसकी वजह से अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो हो सकता है या तो मैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने लगाई है या फिर कुछ पार्ट उसका गवा दूं. तो मेरे एक्विजिशन होने से मेरे बिजनेस पे इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो ये मैं हमने एक और बिजनेस रिस्क देखा. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब 2 मिनट हम पहले खुद से सोचेंगे कि इसमें क्या बिजनेस रिस्क हो सकता है. ठीक है. रेंचको इज द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि रेंचको क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ग्रुप की एक सब्सिडरी है रेंचको. ये क्या चलाती है, हैमर के बैंक को चलाती है. सो नो प्रॉब्लम. इट्स कस्टमर आर मेजरली मोस्टली ट्रेड कस्टमर हु obtain credit and loan to finance a long term building project. In the last year, the financial service regulator has been investigating many banks for charging excessive fees to customer in relation to loan. क्या देखा गया, लास्ट ईयर नोटिस किया गया कि बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर, जैसे कि फ्रेंच को है वैसे ही उसकी तरह बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव फीस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से लोन को लेके. मान लो कि अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो वो 12% चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट कस्टमर से, मीनिंग दैट कस्टमर कैन क्लेम बैक द एक्सेसिव फीस विच दे हैव चार्ज. ऑब्वियस सी बात है, यस. तो रेंचको हैज रिसीव्ड अ लीगल क्लेम फॉर मोर देन 25,000 कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस. रेंचको के पास क्या आता है, एक लीगल क्लेम आता है. लीगल क्लेम मैंने आपको पहले भी कल की वीडियो में भी बताया गया था कि लीगल क्लेम के क्या क्या कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकते हैं. And the group recognized the provision of 22 million in its statement of financial. ओके, सो कंपनी ने इसके रिगार्डिंग 22 मिलियन का एक प्रोविजन रिकॉग्नाइज किया है. ओके, सो लीगल केस. अब
मैं अपने माइंड में सोचती हूँ कि अगर लीगल केस आ रहा है एक कंपनी के खिलाफ, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब कस्टमर को पता चलता है कि मैं जिससे प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसी कंपनी ने क्या किया है, उसी कंपनी के ऊपर लीगल केस हो गया है। अब उस कंपनी के ऊपर लीगल केस हो गया, तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि नहीं, नहीं, मुझे आगे से इससे प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करना है। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर परचेज़ करना बंद कर देगा। कस्टमर परचेज़ करना बंद कर देगा, तो उससे क्या होएगा, हमारी सेल नहीं होएगी, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट इम्पैक्ट होएगा। इसकी वजह से क्या होएगा, प्लस एक रेपुटेशनल डैमेज भी कॉज़ होएगी कि कस्टमर के माइंड में एक गलत इमेज जा रही है कंपनी की। ठीक है? लीगल क्लेम। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि मान लो मैंने ये प्रोविज़न रिकॉग्नाइज़ किया है 22 मिलियन का, बट इन एक्चुअल में जो हमारा प्रोविज़न, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट पे करने की हो सकती है, पेनल्टी वगैरह जो भी हमारे ऊपर आएगी, वो एक्चुअल में और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये तो और भी ज़्यादा फर्दर इम्पैक्ट डालेगा हमारे बिज़नेस पे। तो इस तरीके से मुझे दिखा कि मेरा बिज़नेस, एक लीगल केस होने की वज़ह से मेरा बिज़नेस किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम आंसर में सेम ऐसे ही देखेंगे। रेंचको के खिलाफ एक लीगल केस होता है, रेंचको लीगल केस। ऑन अ जनरल नोट, द फाइनेंशियल इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड। हमने देखा कि फाइनेंस जो कंपनी है हमारी, वो रेगुलेटेड है एंड रिप्रेजेंट डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम द ग्रुप अदर रिटेल एक्टिविटी। मैंने क्या देख रही हूँ अभी तक, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, मैंने आपको अभी बताया है कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू द पब्लिक एंड बिल्डर। कंपनी का मेन बिजनेस ये है। लेकिन रेंचको जो एक सब्सिडरी है, ये किस में ऑपरेट कर रही है, ये किस में ऑपरेट कर रही है, लोन प्रोवाइड करवा रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो रेंचको है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि एक डाइवर्सिफिकेशन है ग्रुप की अदर रिटेल एक्टिविटी से, मीनिंग दैट द ग्रुप मैनेजमेंट में बी लेक्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस पार्ट ऑफ द ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि कंपनी का मेन काम तो ये है ही नहीं। ग्रुप का मेन काम तो क्या है कि उसको रिटेल का जो वो काम करती है वो है, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज तो सिर्फ फ्रेंच को ही प्रोवाइड कर रही है। तो मे भी क्या हो सकता है कि ग्रुप को इसकी नॉलेज ना हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पुअर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकती है कंपनी इसके रिगार्डिंग। एडिशनली हम लीगल क्लेम की बात करते हैं, हम इसको भी छोड़ भी सकते हैं। हम लीगल क्लेम की बात करते हैं। अब लीगल क्लेम हो रहा है रेंच को के अगेंस्ट, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। The claim themselves will put pressure on the cash flow and the cost of the claim will determinately affect the profit। जो मुझे कॉस्ट, कंपनसेशन कॉस्ट वगैरह पे करनी पड़ेगी अगर मेरे खिलाफ कोई पेनल्टी राइज होती है, तो ये मेरा प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा। ऑब्वियस सी बात है। देयर मे बी मैनी पोटेंशियल क्लेम विच मे बी हैव बीन lodged against the group, so the eventual cash and profit impact may be much more than the amount of provision which is currently recognized. As I have told you earlier, that the actual claim might be different from what have been recognized by the company in its financial statement. So uh, our profit again impacted much more than what we have expected. So the services regulator could take further action। इसके अलावा वो और भी एक्शन ले सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पेनल्टी, हो सकता है उसको जेल भी हो जाए या फिर और भी कोई अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब इस कारण, एक लीगल क्लेम होने के कारण मेरे ऊपर क्या-क्या, मेरे बिज़नेस के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, मैंने उसके बारे में देखा। अब हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए हैं? फर्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज़ बैंक लोन एंड थर्ड वन इज़ एक्विजिशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड फोर्थ वन इज़ लीगल क्लेम। हमारे 4 पॉइंट हुए हैं। 4 पॉइंट माइट बी सफिशिएंट बट फॉर 10 मार्क्स आई थिंक 5 पॉइंट्स शुड बी गिवन। सो ओके, वी विल फाइंड एनी अदर पॉइंट। We have given the extract from the projected consolidated financial statement, projected revenue, actual projected total asset, okay, inventory. I think we have to use this in risk of material statement. Next one is, okay, so the company has a store enhancement program. In Feb 2015, the group started a program of extending and renovating all 25 of the Mallet Co largest hardware store, which will become destination stores. Feb 2015 में कंपनी क्या डिसाइड करती है कि जो उसका वन ऑफ द लार्जर हार्डवेयर स्टोर है, उसको रेनोवेट करेंगे वो, एंड उसके में जितने भी कैफे और रेस्टोरेंट है उन सबको रेनोवेट करेंगे। ओके, एंड द प्रोग्राम एक्सपेक्टेड, हर एक स्टोर पर स्टोर पे 5.75 की कॉस्ट आएगी, तो 25 मल्टीप्लाई 5.75
इन टोटल जितनी कॉस्ट आएगी हमारी वो हर मतलब टोटल कॉस्ट आएगी हमारी इस प्रोजेक्ट पे। एट एनी वन टाइम 5 स्टोर आर क्लोज्ड व्हाइल द रेनोवेशन एंड नेसेसरी कंस्ट्रक्शन वर्क टेक प्लेस। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं एक टाइम पे किसी भी 5 स्टोर को बंद कर दूँगी, मुझे 25 स्टोर को रेनोवेट करना है, 25 में से मैं 5 को एक टाइम पे बंद करूँगी, मीन्स मैं 5 टाइम में अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करूँगी। तो मतलब मैं 5 स्टोर को बंद कर रही हूँ रेनोवेशन के टाइम पे एंड ऑन एन एवरेज अ स्टोर विल क्लोज फॉर 2 मंथ। हर एक मतलब एवरेज अगर मैं देखूँ हर एक स्टोर 2 महीने के लिए बंद रहेगा जब तक ये काम चलता रहेगा। अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है, मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ श्रुति, अगर मैं 5 स्टोर एक टाइम पे बंद कर रही हूँ और मेरा एक मैलिड को जो मेरा जहाँ से मेरी सबसे ज़्यादा सेल है, अगर मैं उसको ही बंद कर रही हूँ 2 महीने के लिए, तो वहाँ से जितनी भी सेल हुई वो तो सब गई। वो तो मेरे अब हो ही नहीं रही, जो मेरा उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो हो ही नहीं रहा। एक तो मेरे बिज़नेस पे ये इम्पैक्ट डाला कि मेरा उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा। सेकंडली जो मैं एडिशनल कॉस्ट इनकर करने लग रही हूँ इसके ऊपर 5.75 पर स्टोर के ऊपर जो मैं कॉस्ट इनकर कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं इस कॉस्ट को लगाऊँ और मुझे उसका रिटर्न ही ना मिले। हो सकता है कि मैं मेरे को मैं मेरे कस्टमर जो चीज़ को उस चीज़ को प्रेफ़र ही ना करें जो जिस स्टोर पे मैं पैसा लगा रही हूँ। तो इससे मुझे रिटर्न ही नहीं मिलेगी। अगर मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? अगेन मेरा प्रॉफ़िट इम्पैक्ट होएगा, मेरे कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि मेरा एक स्टोर क्लोज़ होने के कारण मेरे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट डल सकता है। सो अब हम इसको रीड करेंगे। एक्सटेंशन एंड रेनोवेशन प्रोग्राम। दिस इज़ अ लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रुप। ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट की गई है ग्रुप के द्वारा। एप्रोक्सिमेटली 144 मिलियन बीइंग स्पेंट, 525 स्टोर इंटू 5.75 पर स्टोर। ओके? अप्रोक्सीमेटली कंपनी 144 मिलियन स्पेंड कर रही है इस रेनोवेशन पे। सो देयर इज अ रिस्क दैट देयर इज नॉट एन एडुकेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ द डेस्टिनेशन स्टोर स्ट्रेटजी इज नॉट सक्सेसफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि मुझे रिटर्न ही ना मिले स्टोर से, जो मैं सोच रही हूँ वो मेरा सक्सेसफुल ही ना हो, तो उस कारण कंपनी को क्या होगा, लॉस होएगा। इन एडिशन विद द 5 स्टोर बीइंग क्लोज्ड एट एनी वन टाइम, जब जैसे अगर मैं 5 स्टोर एक ही टाइम पे क्लोज कर रही हूँ, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा मेरे रेवेन्यू पे, मेरे कैश फ्लो पे। देयर विल बी अ डेंजर दैट द कस्टमर हैविंग यूज्ड अल्टरनेटिव हार्डवेयर स्टोर व्हाइल द हैमर स्टोर आर शट। जिस टाइम पे हैमर स्टोर बंद होंगे, उस हो सकता है मेरा कस्टमर उस टाइम पे का मेरे कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाए टू लाइक वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटर एंड डू नॉट रिटर्न वंस द रेनोवेटर स्टोर आर रीओपन। इवन अगर मैं उसको रेनोवेट करने के बाद ओपन भी कर रही हूँ, हो सकता है मेरा कस्टमर मेरे पास वापस ना आए और वो मेरे कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाए। सो इस तरीके से हमें अपने बिजनेस रिस्क को देखना होता है कि कोई भी सिचुएशन मेरे बिजनेस पे किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह मेरा बिजनेस किसी भी सिचुएशन के कारण इम्पैक्ट हो रहा है। सो अब like we have 10 marks for this question and we have already discussed 5 points, so this is more than enough. So we can also take another points from that, if we are able to find any other point also we can also take this, but आई होप जो मैंने आज ये सब कुछ समझाया है वो आप सबको क्लियर हुआ होगा। एंड मैंने ये जो बताया है, ये मैंने इसी में पॉइंट बना के बताया है। लाइक अगर कोई रिस्क मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको अलग से डिफाइन यहीं पे डिफाइन कर दिया है। बट इन एग्जाम वी हैव गिवन अ कंप्लीट सिनेरियो एंड वी हैव टू फाइंड द रिस्क एंड डिस्क्राइब इट इन अ वन कंप्लीट पैराग्राफ। ओके, सो आई होप आप सभी को ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कल की वीडियो में हम करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इसी तरीके से हम उसको भी कवर करेंगे जहाँ पे हम ट्राई करेंगे खुद से ज़्यादा रिस्क को फाइंड आउट करने की। सो ओके, एंड मैंने ये भी आपको बता दिया है कि हमें रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, ब्रीफिंग नोट्स। हम इसको एक बार दोबारा भी देख लेंगे जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। सो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।